As I said, that this ceremony will inspire everyone to continue aiming higher and achieve more. On behalf of the school administration, I would like to thank all of you, especially the organizing committee members, Fauji Muhammad Nawaz Tabassum Sahab, Mr. Rana Asad Sahab, Sayyid Adil Abbas Zaidi Sahab, my friend, my brother, Dr. Abdullah Salim Sahab, Muhammad Khurshid Sahab, Fauji Gulbaz Sahab, and of course, Muhammad Kashif Zubair, for their consistent, collaborative, and cooperative support throughout the session. To continue further the ceremony, I would like to ask Miss Palwasha, who is my co-anchor, to come on stage, please, and announce for the Tilawat Kalam Pak, and let us begin the program. Miss Palwasha. न आया है न छुपा हुआ वो जो फासलों पे मुहित है, नहीं दूर तुमसे करीब है। वो जो फासलों पे मुहित है, नहीं दूर तुमसे करीब है। ये खुदाए रब्बे करीम है, ये खुदाए रब्बे करीब है। Now I would like to invite Rohan with his friends for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. I seek protection in Allah from the accursed shaitan. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. In the name of Allah, the beneficent and merciful. والتین والزیتون قسم ہے انجیل کی اور زیتون کی. By the fig and the olive. وطور سینین اور طور سینین کی. And Mount Sinai. وهذا البلد الأمین اور اس امن والے شہر کی. And the secure city of Mecca. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. Indeed, we created woman in the best form. ثم رددناه أسفل سافلین پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا. But we will reduce to the lowest of the low in hell. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے ایسا اجر جو کبھی ختم نہ ہوگا. Except those who believe and do good, they will have a never-ending reward. فما يكذبك بعد بالدين بس تجھے اب روز جزا کا Judgment. أليس الله بيحكم الحاكمين. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ Is Allah not the most just of all judges? صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جس کا ذکر خود اللہ کرتا ہے، جس کی نعت پڑھتے ہوئے پروردگار عالمین کہیں اس سے والشمس کہتا ہے، کہیں طٰہٰ اور یاسین کہہ کر مخاطب کرتا ہے. جب پروردگار عالمین کو اس پر بہت پیار آتا ہے تو مزمل کہہ کر بلاتا ہے. جس حسن کامل کو خلق کر کے وہ بے دل بھی اپنا دل دے بیٹھے، اس محبوب الہی کے سامنے حسن یوسف ہیچ نظر آتا ہے. Now I would like to invite Hassan Iqbal for Naat Sharif. مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں اقصا دے وچ یوسف کہا ہن میں کدوں سونا رہیا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں
ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. Now I would like to invite Ma'am Anam Anwarul Haq for Durud Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Come on the stage for Naate Rasool. دیکھو قرآن ہے اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے اس میں پیدا ہوئے میرے حوصل ورا جو کہ سب نبیوں کے سردار ہیں. ماہ رمضان ہے ماہ رمضان ہے کاش رمضان ہو اور ماسات ہو اور عمرہ کرو یہی ارمان ہے. کاش رمضان ہو اور ماسات ہو اور عمرہ کرو یہی ارمان ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. A very good morning everyone. We are very happy to see you all together. Thank you all for joining us here today at this program. We hope you all enjoy this program and that it turn out to be great, success and memorable one for all of us. We hope this day turn out to be as amazing as it starts. Thank you. Very good, Usman Sahib. With us today, and they will enhance the grace of this ceremony. Your presence is our honor. We heartily welcome all of you to the annual program. I welcome you to the special event of splendor. We promise you extra entertainment that is designed to entertain and enlighten you with the performance of our student. So please give a big hand to these innocent kids, presenting a warm welcome on Salamun Marhaba. ایک دفعہ کلیپنگ کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. And the results are for the play class, play group. I have some nominees for the first prize, but I will let you know about the names. But first, I would like to ask Fauji Muhammad Nawaz Tabassum Sahab to come on stage, please. آپ کی تالیاں ہونے چاہیے. نام کے ساتھ فوجی لگا ہوا تھا. پہلے آپ ایک ترانہ سن رہے تھے, ایک ملی نغمہ سن رہے تھے, تو انہی میں سے ایک یہ سپاہی بھی ہیں. بہت ہی پیارے دوست ہیں, اللہ پاک ان کو اجر دے, سلامتی دے. So now I would like to ask Parents, teachers and all my dear class fellows, Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, thank you for being here. Today I want to talk about something that affects each to us, the importance of study. Study is not just about textbooks or exams. It's about the journey of learning, growing, become better versions of ourselves. When we study, we gain knowledge, and knowledge is power. It is a power to make good decisions, solve problems, and achieve our goal. Think about the people who have changed the world. Scientists, leaders, all of them study and learn before they have made. But this power does not mean being better than. It's about being the best. We can be studying help us to understand the world around
ourselves, to ask questions and to find solutions. When we study, it's not memorizing facts. It's about discovering the new ideas and way of thinking. Thanks. बचपन का जमाना था, खुशियों का जमाना था. एक बचपन का जमाना था, खुशियों का जमाना था. चाहत चाँद को पाने की था, दिल तितली का दीवाना था. थक कर आते थे स्कूल से, फिर खेलने भी जाना था. थक कर आते थे स्कूल से, फिर खेलने भी जाना था. अब नहीं रही वो जिंदगी जैसे बचपन का जमाना था. शुक्रिया. अन्ने दादी तस्बीह ये कहता, कबार ने दादी तस्बीह ये कहता, गिन गिन के नामे उसको दागा जो बेसाद देता. शुक्रिया. करीम अम्मा बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये सोनी धरती ललकार उठी, पुकार उठी, इंसानियत को भारी जुदों तले बांधने वालों, फिजा में तारीख की धूप फैलाने वालों, बोताने रंगों तू में उलझाने वालों, तू कौन में लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मैरिट का कत्ल करने वालों, कायदे आजम और डॉक्टर इमाम मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों की खौफनाक तबीर करने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, मैं पूछती हूँ कि अगर ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? अली वकार मैं नमरूद दौरी को कहती हूँ कि आओ मैं तुम्हें कायदे आज़म का पाकिस्तान दिखाती हूँ. आओ मैं तुम्हें डॉक्टर इमाम मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान दिखाती हूँ. कायदे आज़म 1945 में फरमा गए कि तुम्हें एक दिन अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा. तो हाँ, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, हम MM आरिफ सरफराज अहमद और शेर खान हैं, और हम तो वो सरफराज हैं जो बर्फ में पारा ताले अपनी जान बचावर करते हैं. अली वकार ही तो कायदे आज़म का पाकिस्तान था. ये तो कायदे आज़म का पाकिस्तान था. तो आप मुझे बताएं कि ये भी कायदे आज़म का पाकिस्तान है जहाँ चाय की पत्ती में रंग मिलाकर बेचने वाला चाय फरोश, खालिस दूध के अंदर पाउडर और पानी मिलाकर बेचने वाला घवाला, गोश्त के पैसे वसूल कर हड्डियां नाप तोड़ देने वाला किसान, या पेड़ कलम बेचकर पैसे कमाने वाला सहाफी. ये सब मिलकर मेरे मुल्क का बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं. मगर ये कसूर उनका नहीं, ये कसूर तो सिर्फ उनका है जिन्होंने पिछले 33 सालों से न सिर्फ मेरे मुल्क को बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा, बल्कि बदनवानी और बदनज़मी जैसी लाइलाज बीमारियों से चाप गया. अली वकार ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है कि आज मेरा मुल्क बदअमवान तरीन ममालिक की फसद में बहुत हकीर है. मुतअद्दिब पास में रखा और नहीं कभी हो सकेगा. जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेसरी ने मिटा दिया, जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेसरी ने मिटा दिया, जो वसीना हाथ पर मौत पर मरे बैठे थे. शुक्रिया. दुनिया में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए. Now I would like to call Anand Tul from class 3rd for representing a speech on Akhiruz Zaman Nabi. प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम. अंधेरी रात है शम्सुज़्ज़हा की बात करो, अंधेरी रात है शम्सुज़्ज़हा की बात करो, सितारा नूरे मुस्तफा की बात करो. साथियों, आज मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करूंगी. इस नीले आसमान के सितारे आज भी दुनिया के खित्ते में बाहर देख रहे हैं. प्यारे साथियों, आपका इखलाक पूरा कुरान था. हजरत ने अपने इखलाक और उसमें से तहजीब और इखलाक को शाह शक्ति का नमूना बना दिया. मुअल्लम थे तो इनका इखलाक देखो, ताजर थे तो इनकी ईमानदारी देखो, मुंतजिम थे तो इनका इंतजाम देखो, खामन थे तो इनका इंसाफ देखो. शुक्रिया. क्या लिखूं उस अल्लाह की तारीफ जो ना मांगू तो नवाज देता है, जो ना मांगू तो नवाज देता है, और जो मांगू तो बेहिसाब देता है. Now I would like to call class 2 and 3 boys for representing a tableau as मी तुझ पे साया खुदा का रहे. भी हो क्या मुमकिन है तुम भी कहो, हस्ती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई, अपने होश लिए है तुमने मेरी जुबान को मत रोको, तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो. सदर अली वकार, कहा यह जाता है कि हम आजाद हैं, ये मुसलमानों का आजाद मुल्क पाकिस्तान है,
है, कपड़ा मकान लुटाते हैं जिन्ना के ख्वाब, सदर अली वकार, और कहा ये जाता है कि हम आजाद हैं। बंदूक के बदले हाथों में किताब आ जाए तो अच्छा हो, बंदूक के बदले हाथों में किताब आ जाए तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी सदी का एक किस्सा बाप तो अच्छा हो। हर किस्सा ना सुना है, माहौल शहर आलूदा है, हर चार हर्ष की शाखों पे दो चार गुलाब तो अच्छा हो। जिक्र दिया जाता है खुद खुदारी करीब आता है, यहाँ जिक्र दिया जाता है खुद खुदारी करीब आता है, जिक्र मुस्तफा में बैठने वाला आदमी खुद नसीब आता है। अगला का साथ झुकाया नहीं आया, अगला का साथ झुकाया नहीं आया, दर दर पर सबको झुकाया नहीं जाया। शुक्रिया। उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे आग मिलाना अच्छा नहीं लगता। इकबाल मुझे दोनों वालों की कतार में रखना, मुझे दोनों वालों की कतार में रखना, मेरे मालिक तेरे दर्श के सिवा कोई सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया। एक मुसाफिर चला जिसके कुछ बात है, घर से एक मुसाफिर चल जिसके कुछ अरबात है, कुछ कदम आगे चला रास्ते इंसान पे। इकबाल कल सामने खड़ी नहीं जिसकी कुछ बयान पे, इकबाल कल सामने खड़ी नहीं जिसकी कुछ बयान पे, मुसाफिर संभल के चल लंबी कर इंसान पे। शुक्रिया। माना हो तो वफा कौन करेगा, माना हो तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी के लिए दुआ कौन करेगा। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है माँ की अजमत। माँ एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नामल बदल नहीं। माँ अहले जमीन के लिए रब्बुल करीम का अजीम तोहफा है। माँ एक ऐसा शाहजादा दरख्त है जो हमें जिंदगी पर धूप की तमारे से बचाता है। माँ की मौजूदगी रोशनी का अहला और हर से उजाला है। माँ मोहब्बत का सचश्मा है। जन्नत नजीर है मेरी माँ, जन्नत नजीर है मेरी माँ, रहमत की तस्वीर है मेरी माँ। मैं एक ख्वाब हूँ जिंदगी का, मैं एक ख्वाब हूँ जिंदगी का, जिसकी ताबीर है मेरी माँ। जनाब सदर, माँ की मोहब्बत और शफकत में इतनी वस्त कि अल्फाज का पहला खत्म हो जाए। माँ लफ्ज का एहसान अगर पाए, माँ की लाजा मेहरबान, माँ की हस्ती में मेहरबान, माँ उम्मीद और माँ एक ऐसा चिराग जो हमारी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी भरता है। माँ की होश में जो सुकून है वो कहीं और नहीं, माँ की होश में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। माँ वो जन्नत है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। शुक्रिया। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, आज मुझे इस मजमे ख्याल अलाई के लिए बुलवाया गया है और अजहारी ख्याल का मौका दिया गया है ताकि मैं इकबाल के इस शेर को बयान कर सकूं। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का और शुजाअत का। तो सदर अली वकार इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आहनी निकली और सबूत के आलम में मैं ये सोचने लगा और गुंगा हो गया। अभी जुबान कुछ कहते कहते हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, बस डर गया खुद को सहाबे ईमान कहते कहते। मेरे शेल्फ घर से किताब का जब पूछा गया मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। जनाब अली, हमें सोचना होगा क्या आज सदाकत, अदालत और शोरा जाति से जिंदा है? तो सदर अली वकार, चलो बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारे अदालतों में बैठे जजों का ज़मीर जिंदा है? बल्कि सच तो यह है कि हमारी अदलिया तो कब का अदल का जनाजा निकाल चुकी है। शुक्रिया। लिखते लिखते कलम सूख गया, मेरे बाप की तारीफों का जवाब नहीं। लिखते लिखते कलम सूख गया, मेरे बाप की तारीफों का जवाब नहीं। लहू बेच के मेरी ख्वाहिशें खरीद लाता है, लहू बेच के मेरी ख्वाहिशें खरीद लाता है। बाप इतने एहसान न जाने कैसे कर जाता है, बाप इतने एहसान न जाने कैसे कर जाता है। Now I would like to call कशफ शफीक from class 6 for representing a speech. बाप की अजमत। सख्त खुद को दिखलाता है, दिल का है नरम मगर सख्त खुद को दिखलाता है। जमाने की ठोकर से लेकिन मुझे बचाता है। कदम उठाना तो क्या, कदम जमाना भी खाता है।
कदम उठाना तो क्या, कदम जमाना भी सिखाता है। खुद से आगे जाता देख कर से वही तो मुस्कुराता है। जनाब सदर, मोहतरम साजा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का अनवान है बाप। जनाब सदर, बाप वो हस्ती है जो अपने अंदर पूरी कायनात का प्यार, मोहब्बत, खलूस, बर्दाश्त और हौसला समेटे हुए है। ये वो रिश्ता है जो जिंदगी के नसीब अफराज से गुजर कर बगैर किसी शिकन के मजबूत से मजबूत होना चला जाता है। बाप ही सरमाया औलाद है, बाप ही इजदाद की बुनियाद है। बाप ही सरमाया औलाद है, बाप ही इजदाद की बुनियाद है। गोद माँ की दस्त का उलैन बाप है रूज दिल नशीन। जनाब सदर, दुनियावी रिश्तों में सबसे अजीज रिश्ता माँ का तस्वुर किया जाता है, लेकिन बाप का रिश्ता भी अजीम और आलिशान है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्म देती है और बाप सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके पालने की जिम्मेदारी लेता है। सदर वक्कार, बाप एक ऐसी किताब है इस पर बहुत से तजर्बा तहरीर होते हैं जो जिंदगी गुजारने में हमारी मदद करते हैं। बाप का हाथ कंधों पे हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। बाप की मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और फूल से ज्यादा खुशबूदार होती है। बाप अपनी औलाद की परवरिश के लिए अपनी खुशियों पर पर्दा डाल देता है, अपनी खुशियां नजरअंदाज कर देता है, अपने पसीने की एक एक बूंद अपनी औलाद पर कुर्बान कर देता है। मुझको रखा छाऊं में कुछ जलता रहा धूप में, मुझको रखा छाऊं में कुछ जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। जनाब सदर, बाप अपने बच्चे की न्यारी जिंदगी बुलंद से बुलंद करने की कोशिश करता है। बाप अपने बच्चों को हर वसीयत फराहम करने की कोशिश करता है जो जिंदगी की जरूरियात होती है। वो अपने बच्चे की नयाशाती जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जनाब सदर, माँ का हक सबसे ज्यादा है लेकिन शान बाप की सबसे ज्यादा है। माँ का हक सबसे ज्यादा है लेकिन शान बाप की सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो औलाद की खातिर ना बारिश देखता है, ना धूप और ना ही गर्मी और सर्दी, वो नाशाजगार माहौल में भी कमाने निकल जाता है। जनाब सदर, बाप की शान ये है कि वो अपनी औलाद की जरूरियात और ख्वाहिशात को अपने ऊपर कर्ज समझता है और फिर कर्ज उतारने के लिए गर्मी के लिए थैलों से टकराता है, लोगों की बातें चुपचाप सह जाता है, अपनी हिम्मत से ज्यादा बोझ उठाता है, अपना खून पसीना एक करके शाम को घर लौट आता है, अपनी मुस्कुराहट बच्चों के नाम करता है। हमें इस हंसी का बहुत मशहूर होना चाहिए। जो लोग माँ और बाप की इज्जत करते हैं वही रिज़ा इलाही पाते हैं। जो लोग माँ और बाप की इज्जत करते हैं वही रिज़ा इलाही पाते हैं। दुनिया में आंखों कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है जिनमें दुआएं समंदर की तरह होती हैं, जिनकी लहरों में कामयाबी पनाह होती है। ए हवा सुन जरा सब कुछ मेरा उनसे है, ए हवा सुन जरा सब कुछ मेरा उनसे है, चारों ता मुझ पे सिर्फ उनसे है, सिर्फ उनसे है। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया से जीत कर भी हार जाओगे। मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना तो मैं अपनी हर सांस अपने बाबा के नाम लिखती। शुक्रिया। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। शुक्रिया। सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। शुक्रिया। मौजूद साज़ इकराम और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है उसका अनवान है इल्म की बरकत। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शहादत है, सियादत है, इबादत है इल्म, बसरत है, दौलत है, ताकत है इल्म। जनाब सदर, इल्म एक लाजवाब दौलत है, उसे जितना खर्च करो उतना ही
dear friend, Assalamu alaikum. Today I am here to share my opinion about this social media. Social media is an online platform where we can share thought, information, picture and videos. We all are sitting our day-to-day life. It has become an integral part of our life. There are various social media platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp, PTC. We all use them to communication and socialize. Locally media has both advantage and disadvantage. I would like to finish social media first. Thank you. मोहतरम सादा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके सामने स्कूल वालों के कुछ ऐसे नया फैसलों और उनके पीछे छुपे राजों पर बात करूंगी, जिन्हें देखकर यही दिल चाहता है कि वाकया ही स्कूल वालों को अल्लाह ही पूछेगा। तो पहला मसाइल तो सुबह की असेंबली का है। जब हम सुबह नींद के मजे ले रहे होते हैं, आइन उसी वक्त हमें असेंबली के लिए बुलाया जाता है और यूं खड़ा कर दिया जाता है कि जैसे किसी फौजी मशक के लिए तैयार कर देते हैं। इसी पर एक शेर, असेंबली के वक्त हमारी नींद का इम्तिहान, असेंबली के वक्त हमारी नींद का इम्तिहान, दिल में बस यही दुआ के छुट्टी हो आसान। फिर आते हैं टेस्ट के इम्तिहानात। पता नहीं स्कूल वालों को क्यों लगता है कि हम रोबोट हैं और हफ्ते में 3 टेस्ट बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, और जब पर्चा देखते हैं तो यूं लगता है कि जैसे किसी और सियारी की जुबान में लिखा हुआ है। इसी पर एक शेर, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का दिन हम पर भारी, पेरेंट्स टीचर्स का दिन हम पर भारी, अगले दिन का सोच कर आई है शर्मसारी। और सबसे अजीब और गरीब चीज है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। वालिदैन को बुलाकर जो हमारी कारकर्दगी बताई जाती है, उस वक्त दिल करता है जमीन फट जाए और हम सब उसमें समा जाए। पेरेंट्स टीचर्स का दिन हम पर भारी, पेरेंट्स टीचर्स का दिन हम पर भारी, अगले दिन का सोच कर आई है शर्मसारी। अब आते हैं स्कूल के कवानीन, ना मोबाइल लेकर आने की इजाजत, ना रंग बिरंगे कपड़े जूते पहनने की। अगर जरा सा हंसी मजाक कर ले तो यूं डांटते हैं कि जैसे हमने स्कूल में कोई हंगामा बर्पा कर दिया हो। आखिर में बात करेंगे छुट्टी की। कोई ईद हो या बारिश, छुट्टी का नाम भी नहीं लिया जाता, बस यही कहा जाता है आओ पढ़ो और पढ़ते रहो। इस पर आखिर में एक शायर, छुट्टी के लिए दुआ हर बच्चे की जुबान पर, छुट्टी के लिए दुआ हर बच्चे की जुबान पर, लेकिन स्कूल वालों को रहम नहीं आता इस नन्ही सी जान पर। शुक्रिया। इकबाल तेरे शाहीन का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे शाहीन का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी गोई से ये घबराता है मोमिन, मक्कारी मेरा बाबी ये उतराता है मोमिन, इस रिज़्क़ से परवाज़ में आई हो खुदाई, वो रिज़्क़ बड़े शौक से खाता है मोमिन, किरदार का गुफ्तार का ईमान का मोमिन, कोई नहीं ऐसा किसी जंजाल का मोमिन, सदका है मोमिन तो कोई पंजाब का मोमिन, दुनिया से भी न मिलता कुरान का मोमिन। क्या आज का नौजवान बाल जाहिल कहलाने के लिए लायक है? जी नहीं, आलिम अकार आज का नौजवान इकबाल जाहिल कहलाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं। इकबाल जैसे अजीम शायर का शहीन बुलंदी और रफ्तों के लिए सरगर्मा, लेकिन आज के नौजवान अपनी ताकत रफ्तार पर नाज तो है, लेकिन बात करने का सलीका नहीं। ये नौजवान को इकबाल शहीन करार देते हैं, जिन्होंने अपनी तहजीब को खुदा लाख वॉरियर मगरबी तहजीब को अपनाया। अज़ान के वक्त ये नौजवान मसादत की बजाय इंटरनेट कल्बों का रुख करते हैं। ये क्या जाने के इकबाल शहीन की प्रवास तो आसमान पर होती है। इनकी जिंदगी का ना तो कोई मकसद है और ना इन्हें अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है। इनकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ दस्त और गुबार है। ये चंद मरीज पर जाने की बात तो किया करेंगे, ये तो बगैर रॉकेट के जहाज बने फिरते हैं। जनाब सदर, ये नौजवान इकबाल की शायरी को क्या समझेंगे? ये तो इकबाल की शायरी को इम्तिहान में चॉइस पर बख्शने पर आया जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पर आया जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगार को वो रमजान देता है। शुक्रिया। किस शान से अल्लाह ने उतारे
مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت صحیح صبر کے جس کا انتظار میں. خوبصورت اخلاق انسان کا سرمایہ، خوبصورت اخلاق انسان کا سرمایہ، اسر کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. جناب صدر، محترم صدر اکرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حسن اخلاق. اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے. اخلاق انسان کی عادت بھی ہے اور جبلت بھی اور تربیت بھی. اخلاق کسی بھی مذہب، مذہب یا مکتبہ فکر کی معراج نہیں، بلکہ اخلاق دنیا کی تمام مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں. ہم لوگ تو اخلاق پی رکھائیں اسائل، ہم لوگ تو اخلاق پی رکھائیں اسائل، ردی کا اسی ڈیر میں عطا پڑے تھے. صدر وقار، جس معاشرے میں اخلاق نہ پیدا ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا. اس معاشرے میں اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت اور باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چل سکتا. اس معاشرے میں اور اس قوم اور کلیپنگ کر دو یار، کلیپنگ کرو. صبر کی دولت